Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are starting new chapter. That is chapter 3. That's okay, ji? All comfortable? So we are starting chapter 3, which is called the Karnaugh map. Right? The Karnaugh map. And that's the method for minimization of a Boolean function. Step volume 5. And what is Karnaugh? Who's Karnaugh? He's a person name, basically. Who basically gave this idea. Right? Way back, Mr. Karnaugh gave this idea how to minimize the Boolean functions. Okay. So today's learning outcomes. So everybody understand that we have course learning outcomes, we have program objectives, OBE का आपको briefing दी गई? थोड़ी ठीक है? किसने brief किया था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसने आपको brief किया था? सेमिनार हुआ था, तो उसमें किसने brief किया था? क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछेंगे ना, मुझे नहीं पता है, मैं तो I did not attend that seminar. I'm asking you, who gave you the briefing? Dr. Reddy कहा? He gave that briefing? चलें, अभी मैं OBE में मेरा एक और role I have taken the initiative myself, that is the continuous quality improvement (CQI). क्या वो मैं करूँगा? वो basically today I have taken that responsibility myself. वो quality का हमारा हाल बुरा ही है, लेकिन OBE सारे प्रोग्राम चलते रहेंगे, लेकिन we want to improve the quality of education. ठीक, इसमें आपका feedback important है, वो हम बात करेंगे इस पे, क्योंकि जब तक you are the customer, you will not tell कि भाई कहाँ मसले हैं, ठीक है? Getting the knowledge, we can't help. मतलब मैं आपको लेक्चर देता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लेक्चर दिया, मेरे में भी खामियां होंगी. So you have to tell me, you have to tell the teachers, when you give a feedback. मैंने देखा feedback बड़ा कैजुअल देते हैं आप लोग, ठीक है? अगर किसी को डांट डपट पड़ी है तो वो पुअर सब चीजों में पुअर कर देता है. Which is very bad, which is not honest opinion. देखिए हम आपसे फेयर है ना, ये और फेयर, आपके पेपर चेक करते हैं, दिखाते हैं आपको, ठीक है? और अगर किसी ने मतलब misbehave भी किया हो तो हमारा एक being teacher भी हो biased. I can see this dishonesty in students, very bad. मतलब उससे feedback देने से हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा या मैं नौकरी से नहीं निकाला जाऊंगा, ठीक है? That reflects attitude. और दो ही चीजें किसी ने कहा है कि अगर ठीक हो जाए आपकी attitude and time management, you are a perfect person. टाइम मैनेजमेंट के किस टाइम पे क्या करना है और किसको प्रेफरेंस देनी है आपने, और दूसरा एटीट्यूड सही हो जाए, एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, तो हम बात करेंगे कमिंग बैक. सो टुडेज लर्निंग आउटकम, हर लेक्चर का एक लर्निंग आउटकम होगा कि सीखना क्या आपने. ठीक है, तो वी ट्राई टू गिव दिस. मैं पहले वो देता था आपको टॉपिक्स देता था, वो टॉपिक्स की बजाय आप लर्निंग आउटकम्स दिया करूंगा, क्योंकि हर लेक्चर में इस पहली स्लाइड आपको बताएगी कि हम सीखना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, तो इफ यू रीड द लर्निंग आउटकम, व्हाट इट सेज, गिवन अ फंक्शन, एक बूलियन फंक्शन आपको दिया गया है, राइट, कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड, ठीक है, और 3 to 5 वेरिएबल. सो वी आर गोइंग अप टू 5 वेरिएबल, ओके, 6 वेरिएबल तक भी जा सकते हैं, लेकिन वी रिस्ट्रिक्ट टू 5. ठीक है, व्हाट इज on a Karnaugh map, so we must understand what a Karnaugh map is and how to plot it, right? And then use to simplify the Boolean expression. And in Karnaugh map की वजह से you will simplify the Boolean expression. अभी क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ आपकी algebraic method से कर रहे हैं, right? But now you will learn a new method which is called Karnaugh map, and you will learn the function may be in. अच्छा, function की form क्या हो सकती है? फंक्शन मिन टर्म में भी हो सकता है, मैक्स टर्म में भी हो सकता है, किसी और अलजेब्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है. तो किसी फॉर्म में भी आपको फंक्शन दे दिया जाए, तो यू वांट अ सिंप्लीफाइड
function. Maybe one of the forms. मुझे अब जो है simplified function sum of products में देने, product of maximum में देने, ठीक है? आज का learning outcome हम clear हो गया कि क्या सीखना है. But at the end of the lecture, you should ask yourself, right? Have I achieved this learning outcome or not? Okay? Maximum 5 variables. हाँ, maximum 5 variables तक की जाएंगे. We go up to 5 variables. लेकिन आज हम maybe 2 variable और 3 variable की बात कर पाएंगे. Maybe next lecture में हम 4 variable और 5 variable तक जाएंगे. ठीक है? लेकिन today lecture is very very important because we want to really understand the concept. If you understand the concept, आप 7 variable भी ले लेंगे, 8 भी ले लेंगे तो you will do it. लेकिन the concept to understand is very very important. So let's go further. So Karnaugh method. So provides an alternative techniques for representing bullying. So that's an alternative way. So you learn the alternative way. So if exam comes algebraic manipulation, you can even rough में इसको आप use कर सकते. ठीक है? अच्छा, इसमें concept क्या है जी? One box of square on the map. So map पे क्या होगा? Squares होंगे. ठीक है? And each square is the each row min term or max term of the function in the truth table. तो आपने truth table देखा था, तो हम कोशिश करेंगे कि basically जो ये squares बनेंगे, ये min terms को represent करेंगे. And we know against the min terms we have the outputs. Okay? For example, if I want to draw, let's say, ये क्या होगा? पेज नहीं चल रहा. ठीक है, कुछ और हो रहा है. मसला मुझे लग रहा है कि ये this giving problem. Let me put it and rerun it. Oh. Okay. Now what we'll do? Let's say you know X and Y. Let's say take the example of 2 variables. So how many min terms for 2 variables? 8 min terms? नहीं, I'm saying how many 2 input पे कितनी min terms होंगी? मैं ये पूछ रहा हूँ. 4 होंगी ना? जितनी input combinations हैं वो आपकी min terms हैं. 0 0 0 1 1 0 और 1 1. और मिन टर्म कैसे डिफाइन करते थे? मिन टर्म कैसे करते थे? x प्राइम y प्राइम x प्राइम y x y प्राइम और x y. ये मेरी मिन टर्म्स हैं. ठीक है जी, मिन टर्म्स हैं. और इसके आउटपुट पे फंक्शन, इसके अगेंस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन पे मेरे पास कोई वैल्यूज होती थी. मसलन ये थी. एंड यू नो दिस इज एन एंड गेम, राइट? सो लेट्स सी हाउ आई रिप्रेजेंट this function in a Karnaugh map. So how many min terms? 4 min terms. So I'll draw 4 squares. तो मैं क्या करूंगा? 4 स्क्वायर ऐसे बना दूं. ठीक है, एक वेरिएबल को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. I'm just giving you an idea. ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 या 1. x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1. और इस क्रॉस खाने में x और y की क्या वैल्यू होगी? 0. x prime y prime, which is 0 0. Right? The same thing. So every square is representing you a min term. तो वो जो 4 min terms थी उसको हमने क्या किया? एक ग्राफ बना लिया. And every square is representing you a min term. ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट देखेंगे. और कंबाइन कैसे करते थे वेरिएबल? बेसिकली वन वेरिएबल चेंज जहां होता था z प्राइम था तो z को हम हटा देते थे. ठीक है, तो यहाँ आपको ग्राफिकली नजर आ रहा होगा कि 7 वाला स्क्वायर जो है वो उसका नेबरिंग
स्क्वायर होगा उसको आप कंबाइन कर सकते हैं। ये भी हम सारा सीखेंगे। So the basic concept is that we are representing the truth table into the math, and how many squares we take? Let's say if we have 2 variables, so we have 4 squares. If we have 3 variables, how many squares? 8 squares. If we have 4 variables, 16 squares. तो ये एक्सपैंड होता जाएगा, मैप बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और 5 वेरिएबल में कितने स्क्वायर होंगे? 532। मैंने कहा था ये 2 का तो टेबल आपको 10-12 तक आना चाहिए, 20 तक खुद कम से कम आना चाहिए। 10 तक आते हैं। चलें, ठीक है। सो कार्नो मैप इनपुट तो हमने ये बात कर ली। तो ये देखें आप एंड गेट, अच्छा अब एंड गेट में ये देखें, अच्छा ये फॉर्म इस तरह ही हो सकती है, इट्स नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन। लेट मी गो फॉरवर्ड। आपके 3 वेरिएबल्स कैसे होंगे? वे इतने स्क्वायर्स बन जाएंगे। 4 वेरिएबल्स क्या होंगे? इतने स्क्वायर्स बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि ये जो वेरिएबल्स चेंज लिखते हैं आपने 0 0 0 1 1 1 1 0, ये कौन सीक्वेंस है? ब्रेक। बस इस चीज का ख्याल। बाकी देयर इज नो प्रॉब्लम। जो आपकी जो ऊपर लेबलिंग करनी है वेरिएबल्स की, वो क्या होगी? ब्रेक कोड में। लुक एट 4 वेरिएबल। इस साइड पे भी ऊपर जो रोज हैं आपकी, वो भी ग्रे कोड में है और कॉलम्स भी ग्रे कोड में। एंड वी आर टेकिंग ऑन 16 पॉसिबल बिल्डर, और ईच स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग अ बिल्डर। ठीक है, ये बात ठीक, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? जी, ग्रे कोड में अभी देखते हैं। ग्रे कोड में इसलिए करते हैं कि 1 बिट चेंज होता है, तो अगर लेबलिंग ब्लॉक है उसको अगर कंबाइन करेंगे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा जी प्राइम या एक्स प्राइम, इसलिए वो लेबलिंग ब्लॉक। और फिर हम देखेंगे कि आगे चल के लेबलिंग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। जहां 1 बिट चेंज है वो लेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका लेबल है, राइट, और ये इसका लेबल है। ये देखिए 0 0 और 1 0 में क्या फर्क है? 1 बिट चेंज। तो इसका आप मैप जो कार्नो मैप है उसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे भी दरमियान से भी फोल्ड कर सकते हैं। लेबलिंग का कॉन्सेप्ट है। 4 वेरिएबल में भी ऐसे होगा, ठीक है। जो कॉर्नर्स होंगे, चारों कॉर्नर्स आपस में जो है वो लेबल है। देखिए आप, इसमें चारों कॉर्नर्स लेबल है। ये लेबलिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी हम ऐसा ऐसा सीखते हैं। पहले 2 वेरिएबल की हम बात करेंगे, फिर 3 वेरिएबल की बात करेंगे, तो वी लर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक हो गया जी, कॉन्सेप्ट पता चल गया कि व्हाई वी आर यूजिंग द के मैप। So simple procedure for minimizing Boolean function. So diagram made of squares. Key you learn to visual pattern है, graphical way of learning है, ठीक है, minimization है। तो graphics is always good than text, right? जो Boolean expressions लिखते हैं वो सारा XYZ, लेकिन एक जो graphical picture से आप बेहतर visualize कर सकते हैं चीजों को, और बेहतर this method is better than the algebraic manipulation, ठीक है। और हमने कहा कि results जो हैं वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम्स में भी हो सकते हैं। इज फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन प्रीवियस मिनिमाइजेशन टेक्निक। इट इज पॉसिबल टू फाइंड 2 or more expressions that satisfy the minimum criteria. Rules to consider. So every cell contains the 1 must be included at least once. ये हम देखेंगे कि जो once को मैप करेंगे, फिर उसकी हम कंबाइन करेंगे once को, तो ये कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। Every cell contains 1 must be included. यानी जितने ones होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। And the larger possible power of 2, और जो हम ग्रुपिंग करेंगे वो powers of 2 में करेंगे। यानी 2 स्क्वायर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, या हम 4 को कर सकते हैं, या 8 को कर सकते हैं, या 16 को कर सकते हैं। powers of 2 को कंबाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 स्क्वायर्स को आप कंबाइन कर लें या 5 को कंबाइन कर लें। That won't be possible. Powers of 2, multiple of 2 होगा, because the 1 must be enclosed in the smallest possible number of rectangles. तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो ट्राइंगल्स जो ग्रुपिंग बनाएंगे वो मिनिमम हो, ज़्यादा वो कवर करें ताकि एक मिनिमल फंक्शन बने, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब हम एग्जांपल्स लेंगे। लेट्स से अब वी स्टार्ट विद 2 वेरिएबल, राइट। सो अ 2 वेरिएबल मैप होल्ड गुड फॉर हाउ मेनी min terms? 4 min terms.
you mark the square with min terms that belong to the given function. तो आपके पास ये min terms आ गई, ये min term आ गई. अच्छा, अब min term लोकेशन का भी आपको पता होना चाहिए कि पहला स्क्वायर जो है वो क्या है, m0. क्यों m0 है? बिकॉज x और y देखें इस तरह चेंज हो रहे हैं, x और y इस तरह चेंज हो रहे हैं, isn't it? x is changing here 0 and 1, right? y is changing 0 and 1, one bit change. Again one bit change, right? इसमें दो एक सिंगल वेरिएबल था तो एक बिट चेंज किया, ठीक है. और जो पहला जो स्क्वायर है वो किस मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, जहाँ 0 है इसका मतलब x प्राइम है, right? और ये हमने जो ये वाला जो एक्सिस है इसमें क्या ले लिया, x, तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये पूरी रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x प्राइम को, ठीक है. और नीचे वाली x को, ठीक है. देखिए ना, यहाँ पे x क्या है, 1, यहाँ x1. अगर कॉलम वाइज चले तो ये क्या है, x प्राइम, ये क्या है, y प्राइम, sorry, y prime. So here you could see the y prime and x is changing here. ठीक है. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है इसका. मैं रीड्रॉ कर देता हूँ इसको. Let me redraw this. So we have 4 squares. ठीक है. So we have 4 square. तो 2 वेरिएबल का जब भी बात होगी तो आप क्या करेंगे, 4 स्क्वायर्स बना देंगे. ठीक है. अच्छा, फिर आप वेरिएबल लेने एक्सिस पे, तो आप लेट्स से a और b वेरिएबल्स हैं. इट कैन बी एक्स वाई, इट कैन बी ए बी, लेकिन आपने देखना है कि फंक्शन में कौन से वेरिएबल्स हैं. ठीक है. लेट्स सपोज आई टेक a एंड b. ठीक है. ये चलो यहाँ एक्स वाई ले लेते हैं ताकि इधर, तो एक्स में इधर ले लेता हूँ, वाई इधर ले लेता हूँ, या एक्स इधर ले लेता हूँ, वाई नीचे ले लेता हूँ, डजंट मैटर. ठीक है. लेकिन एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन से चलेंगे ताकि आपकी जिंदगी भी आसान रहे. ठीक है. सो एक्स में कहाँ ले रहा हूँ, इधर. ठीक है जी. और यहाँ पे y, और मुझे इधर वैल्यूज पता है इसकी क्या है, 0 और 1. यहाँ पे क्या है, 0 और 1. ठीक है. अच्छा, मिन टर्म्स मुझे पता है, ये क्या हो जाएगी, ये देखें x के हवाले से क्या है, x प्राइम, ये क्या है, y प्राइम. सो आई कैन राइट डाउन द मिन टर्म x प्राइम y प्राइम. दैट्स व्हाई m0 इज हियर. सो दिस स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग m0, राइट. और ये वाला again look at left, x prime, and look at y, is y. So that's m1, right? We know the definition of midterm designations, and this is x, y prime, right? And this one is x and y. ठीक है. अच्छा, so अब next चीज है areas. ठीक है. अब आप देखें कि let me use the red color. अब x का एरिया कौन सा बनता है, एरिया वाइज अगर ये 4 स्क्वायर्स को देखें तो x कहाँ 1 है, या सेकंड रो. सो आई कैन मार्क दिस एरिया एज x. ये वाला सारा x जो है इधर, वो x जो है वो अनप्राइम्ड है. ठीक है. सो कैन आई से दिस 2 मिन टर्म्स x इज अनप्राइम्ड. और यहाँ पे ये मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ मैं उसको x को पॉजिटिव को देख लेता हूं, बट आई नो कि दिस एरिया इज फॉर x प्राइम. तो अगर रो को मैं देखूं तो ये एरिया मेरे पास क्या बनता है, x का, और यहां पे देखें ये x प्राइम दोनों में आ रहा है. ठीक है. और y का एरिया कौन सा बनता है, पॉजिटिव y का कौन सा एरिया बनता है, ये वाला कॉलम. सो दिस एरिया इज y, एंड दैट्स व्हाई यू कुड सी दैट नाउ वी हैव डेजिग्नेटेड. तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए. When we write squares, right, we should know the minterm notations. Minterm notation कौन सी है, 0, 1, 2, 3 कहाँ है, right? We should know the areas. X किधर पॉजिटिव है, किधर x प्राइम है. ठीक है. जितने भी वेरिएबल हैं वो क्या है. एरियाज अगर आपको पता हो, minterm notation पता हो, अगर नहीं पता तो आप ऊपर 0 बार और ये सारा लिख के खुद बना सकते. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि anybody who's not clear, please let me know, because ये concept आगे अभी Karnaugh. Can you draw a map of 2 variables? अगर a b दूं, अगर a b है तो x y की जगह a b आ जाएगी, जो भी वेरिएबल हो, जो भी एक्सप्रेशन है. a
इसमें एक्स वाई है तो एक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट है। हाँ, वो ऊपर भी रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिनिमाइजेशन कोई वैसी है। तो लेकिन हम एक स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे तो जरा जिंदगी आसान रहेगी और मुझे चेकिंग में भी आसानी रहेगी, वरना मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का मैप आ गया। अच्छा जी, ये हमने कहा था एंड गेट को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि जहां x और y 1 1 था। लेट्स से ट्रूथ टेबल इसका बना लेते हैं क्विकली और वी सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है। x y हमारे पास इनपुट्स थी और हमारे पास फंक्शन जो था वो 1 कहाँ था, 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड फंक्शन वाज 1 हियर ओनली एट 1 मिनट। x y पे सिर्फ 1 था, ठीक है। तो अब जब मैं मैप इसको करूंगा तो ये स्क्वायर्स तो मैंने बना लिए, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, एरियाज भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, मैपिंग ऑफ द फंक्शन इनटू द कार्नो मैप। आई नो कि ये जो थर्ड मिनटर्म है उधर फंक्शन 1 है और बाकियों पे 0। तो समटाइम आई डोंट राइट जीरोस, आई ओनली राइट वंस। बाकी अगर मैं छोड़ देता हूँ ब्लैंक, इसका मतलब ये है इसमें 0 है। I know midterm number 0, my output function है अंदर मैप कर रहा हूँ, ठीक है। Output function is 0, midterm number 1, my output function is 0, midterm number 2, output function is 0, midterm number 3, output is 1। और अगर ठीक है, ये बात समझ में आ गई नहीं, how to map the truth table into the map। अच्छा, अगर ये सिचुएशन है तो कैन यू राइट द एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी एक्सप्रेशन सीखी नहीं, तो ये कैन यू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, वाइस वर्सा कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होगा इसका, और का नहीं, ट्रूथ टेबल मैं कह रहा हूं, ये लुकिंग एट दिस मैप, कैन यू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। ये मेरा फंक्शन है, I know मिनटर्म नंबर 0 पे 0 है, बाकियों पे 1 है, विच इज ऑन ऑल। देखिए आपको खुद पता लग गया। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि ये मिनटर्म्स को हमने मैप तो कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मैं मिनटर्म की फंक्शन को अगर मिनटर्म की फॉर्म में लिखता हूं तो कैन यू टेल मी के फंक्शन क्या होगा मिनटर्म की फॉर्म में, सम ऑफ मिनटर्म्स। ये क्या होगा, ये नहीं है, the midterm is not there. Which is this midterm? Look at x and look at y. X prime y. X prime y. और ये कौन सी midterm है, X y prime. X y prime. Very good. And then third one X y. X y. तो इसको अगर algebraic manipulation करें तो क्या आता है जी, क्या इसमें कॉमन है, जैसे इसमें क्या है, X और y आ जाएगा। X और Y फाइनली आ जाएगा, ठीक है। यू विल फाइंड इफ यू डू द अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यू विल गेट X और Y, ठीक है। अब हम मैप से देखेंगे कि ये X और Y आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई विल मार्क द एरियाज, वो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो X का एरिया कौन सा एरिया था जी, ये X का था और ये ऊपर वाला X प्राइम का था, विच आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है। और रेड में Y ले लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सा एरिया था, Y का, ठीक है। ये ठीक है, दिस थिंग इज अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मिनटर्म्स। अब हमने वो नेबर की बात की थी, नेबरिंग वन बिट चेंज की बात की थी, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन से किसका नेबर है इसमें जहां वंस लगे हैं। नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन वंस एंड ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दोज मिनटर्म्स, राइट। वो सेम प्रोसीजर वही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि बेसिकली ये इसका नेबर है? तो कैन आई कंबाइन दिस एज वन ग्रुप लाइक दिस। अच्छा, और ये इसका नेबर है, क्योंकि इसको मैंने कवर करना है, इसको अकेले नहीं छोड़ सकता। और ग्रुपिंग मैंने कितनी करनी थी, बड़ी से बड़ी, ऑर्डर्स ऑफ 2 का ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ग्रुप नहीं बनता, सिंगल है तो वो सिंगल एक ही मिनटर्म का ग्रुप बनेगा। 1 का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, ठीक है। इस केस में तो 4 तक ही जा सकते हैं। अगर 8 का ग्रुप बन सकता है अगर बड़े मैप हों, ठीक है। तो हमें पता है कि ये इसका नेबर है
तो इसके साथ ये इसका नेबर नहीं है, देखिए ये इसका नेबर है, नो। जो साथ वाले हैं इसमें तो साथ नजर आ रहा है, 4 ही है, ठीक है, तो साथ। और दूसरा ग्रुप कौन सा बनता है जी? दूसरा ग्रुप ये कौन सा कलर है? चलो रेड में बना लेते हैं। ये मेरा दूसरा ग्रुप बन गया, एक रेड में एक ब्लू, तो 2 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। सो कैन नाउ अगेन saying कि ये मेरा ग्रुप रेड ग्रुप, if you look at the area, which area it lies? Look at left, look at y, y और y prime दोनों में है, तो y is gone, that's why इसकी जो कॉम्बिनेशन होगी वो क्या होगी? सो हम क्या कर रहे हैं, रेड एरिया को देख रहे हैं, इस रेड एरिया को देख रहे हैं, हर वेरिएबल के अंदर उसका एरिया देख रहे हैं। पहले x को देखेंगे फिर y को देखेंगे, सीक्वेंस में देखना आपने, ठीक है। x के किस एरिया में x प्राइम कहाँ ये लाई कर रहा है, आपने सिर्फ ये डिसाइड करना है x में लाई कर रहा है या x प्राइम में कर रहा है, और अगर दोनों में कर रहा है तो वो वेरिएबल नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिंपल रूल। तो वेयर दिस रेड ग्रुप इज लाइंग, x ओनली, नॉट x प्राइम, ठीक है। सो x ओनली है तो इसको हम क्या, इस रेड ग्रुप को क्या लिख सकते हैं? x, ठीक है। अच्छा, अब 2 ग्रुप हैं तो ये आपस में क्या होंगे? और अच्छा, ये वाला ग्रुप देखें, पहले x के हवाले से इसको देखें, x के हवाले से कहां लाई कर रहा है? x एंड x प्राइम बोथ, सो x वोंट बी देयर, x इज एलिमिनेटेड, ठीक है। तो वो वही वाली बात है कि एंडेड है x और x प्राइम। सो जो इसमें देखें ना, ये मेरी मिन टर्म कौन सी है, ये वाली मिन टर्म कौन सी है, ये जरा बोले, ये क्या है? x प्राइम y, और ये वाली नीचे वाली x y, राइट। तो इसमें अगर मैं y कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बेसिकली ये चीज आ जाती है, विच इज 1, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग y। और ये तो ग्राफ से ही आपको एरिया शो कर रहा है कि ये y में ही लाई करता है, x और x प्राइम में ये कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। इट लाई x के, पहले देखिए आपने सीक्वेंस में जाना है, ये ब्लॉक है, ये x के हवाले से कैसे जा रहे हैं? x एंड x प्राइम बोथ, सो x इज गॉन, ठीक है। y के हवाले से ओनली लाइज इन y, सो y विल कम हियर। तो आप देखें ये मैप से आपको बड़ा विजुअल आप देख के ग्रुपिंग बना के उसको मैप तो वापस फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, आगे कोई मुश्किल नहीं, ठीक। तो बैक वो मिड टर्म्स है, मिड टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एंड टर्म्स है ना, मिड टर्म्स एंड टर्म्स, और जो ग्रुप्स आप कर रहे हैं उनको कंबाइन कर रहे हैं, वो आपस में और कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा, हमेशा याद रखें कि जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी कार्नो मैप से, तो हमेशा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, नहीं, हमेशा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आएगी, ये याद रखें, ठीक है। इन्हें हमने मिड टर्म्स मैप किए ना, जब आप कंबाइन करेंगे तो मिड टर्म्स और जितने ग्रुप्स हैं, ये हो सकता है या 1 यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, वो और ऑपरेशन, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन उस दूसरी जो प्रोडक्ट और सम फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है, देंगे। अगर मैं इसको जीरोस को कंबाइन करती हूँ तो फिर वो उसी फॉर्म बन जाएगा, फिर मैक्सिमम की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन हमेशा जो एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा सिंप्लीफाई करके, वो हमेशा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। गॉट द आइडिया जी? आगे चले। तो ये उन्होंने ये देखें एक्स वाई सीधा सीधा लिख दिया और एक्स और वाई लिख दिया, लेकिन हमने पूरी प्रैक्टिस की कि हाउ इट इज डन। जी कुछ कह रहे थे, समझ नहीं आई बेटे, पूछे क्या नहीं समझ आई? एरिया वाइज देखिए ना, जैसे ये वाली टर्म है, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ इट नीट हियर, ये मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एरियाज भी नजर आ जाए। और 0 1 बेशक ना लिखें, वो इट्स बेटर डोंट राइट जीरोस वंस। ये आपके 4 स्क्वायर हैं, राइट। और आपने कहा कि x इस एक्सिस पे ले रहा हूँ और y इस पे ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 1 है, या मैं इसको मैप के एरियाज मैप करूंगा तो ये मेरा y का है, ये y प्राइम का एरिया। आई एम नॉट राइटिंग y प्राइम, ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, लेकिन दैट्स अंडरस्टूड कि ये y है
ये y प्राइम है, ठीक है। इसी तरह x का एरिया कौन सा है, ये वाला, और ये किसका है, x प्राइम का, ठीक है। और अब हमारे पास ये वंस हैं, 3 वंस हैं, ठीक है। नाउ आई एम कंबाइनिंग ग्रुप्स एंड आई, असूल क्या है ग्रुप बनाने का, कि वो नेबर होने चाहिए, 1 बिट चेंज होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी रिटन एवरीथिंग इन ग्रे कोड, ताकि कंबाइन जब करेंगे तो वो 1 बिट चेंज ही होगी, राइट। तो अगर ग्रुपिंग हम करें इसकी, तो ग्रुपिंग कुछ इस तरह की बनती है ना, ये 2 ग्रुप्स बनते हैं, इसके साथ ये कंबाइन हो जाता है 1 ग्रुप, और ये वाला दूसरा ग्रुप बन गया, और तमाम वंस आपने कवर करने, फिर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। अच्छा, नाउ आई एम ट्राइंग टू राइट कि इस, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, इस, ये क्या है, ग्रुप एरिया वाइज। पहले आपने एक्स में देखना है, फिर वाई में देखना है, दोनों में देखना है, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो फिर एक्स में देखना है, वाई में देखना है, जी में देखना है, तीनों में सिस्टमैटिकली चलेंगे तो फिर आपको कभी मसला नहीं होगा, राइट। तो एक्स में देखें, इसमें कहाँ लाई करता है, इस ब्लॉक में लाई करता है, एक्स में लाई करता है या एक्स प्राइम में लाई करता है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप एक्स में लाई करता है, एक्स प्राइम में नहीं लाई करता। सो और वाई के हवाले से देखें इसको, वाई और वाई प्राइम दोनों में लाई करता है, ऐसा ही है ना। ये देखिए, ये वाई और वाई प्राइम दोनों में लाई कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो है। तो इसका मतलब है कि वाई विल बी एलिमिनेटेड इफ इट लाइज इन वाई वाई प्राइम, वाई इज एलिमिनेटेड। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन या क्या एक्सप्रेशन बनेगा इस ग्रुप का, एक्स, राइट। और ये वर्टिकल ग्रुप का एक्स के हवाले से इसको देखें, जी जी, एक्स एक्स प्राइम है तो एक्स इज एलिमिनेटेड, वाई के हिसाब से ये वाई में है तो हम इसको वाई, and that's why this the whole expression is basically an OR operation which is x और y, ठीक है। आपकी बात समझ में आ गई, इट्स गुड। अगर नहीं समझ आई लेकिन मुझे बताएं, मैं 10 दफा रिपीट करूँ, लेकिन यहाँ से जब जाए तो वो लर्निंग आउटकम आपका पूरा होना चाहिए। अगर ये कोशिश करेंगे तो इवन आपको, लेकिन मैं स्टिल आई विल से कि रीड द बोर्ड, रिवाइज द लेक्चर व्हेन यू गो बैक। अब वो जब तक आदत नहीं डालेंगे, यू आर नॉट ट्यून टू द सेमेस्टर सिस्टम, यू आर नेवर सक्सेसफुल। हमने पूरी लाइफ बुला दी है ना, 5 साल मैंने सीएई में, मतलब 4 साल खुद पढ़ा, 5 साल पढ़ाया सीएई में, जहाँ ये स्टैंडर्ड सारे इवॉल्व हुए, सेमेस्टर सिस्टम। The Americans introduced this semester system, or initially Americans did, because they evolved those standards there. Okay, being student also for 4 years and 5 years teacher at CAE, College of Aeronautical Engineering, और यहाँ में 13 साल होने वाले हैं। We know the semester system, और we know the student psyche। हमारे अपने बच्चे, बेटा मेरा जो है वो कॉन्सेप्ट में पढ़ा, मुझे उसकी साइकी क्या पता है, आपकी साइकी क्या पता है, ठीक है। तो वो नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को भी कहते हैं, वो भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन जो उस बच्चा उस पे आ जाता है, ट्यून हो जाता है, ही सक्सेसफुल, ठीक है। ये जो अक्सर जो सक्सेसफुल बच्चे हैं, मैं उनको भी इंटरव्यू करता था, मैं कहता हूँ कि नहीं आपके बड़े अच्छे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो क्या करते हैं आप, व्हाट इज डिफरेंट देन द अदर स्टूडेंट। जैसे वी हैव अ रूटीन एंड वी गो बैक ओनली रिवाइज थिंग्स, डू रिपीटेशन जरूरी है, ठीक है। यहाँ से जब फिर निकलेंगे, जब रेपिटेशन होती है, सो ह्यूमन नेचर की जब आप खुद से रिपीट करते हैं उसको और रिकॉल करते हैं, तो वो बेहतर हो जाए, आपकी मेमोरी में बेहतर रजिस्टर हो जाए, ठीक है। तो स्टिल वो जो टिप्स हैं वो मैं कहता हूँ वो भूले नहीं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों को पढ़ाएं, दूसरों, अब एग्जाम आगे आपने अपनी पढ़ी होगी, दूसरों को पढ़ाएं, आप देखें ज्यादा आपके बेहतर परफॉर्मेंस, ठीक है। चले आगे चलें जी। अब 2 वेरिएबल मैथ का कॉन्सेप्ट अब 3 वेरिएबल का हो गया। कितने स्क्वायर्स होंगे, 8 स्क्वायर, और मिड टर्म्स आप देख सकते हैं जी, एक्स को इधर ले लिया और वाई जी 4 इधर आ गए, ठीक है। और उसको ग्रे कोड में लिखा, रिमेंबर यू आर राइटिंग इन ग्रे कोड। पहला क्या है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। ये ख्याल रखना आप। अच्छा, अब आप मुझे मिड टर्म लोकेशन बता सकते हैं इसकी, मिड टर्म्स लोकेशन? नहीं, इधर ये बनी हुई है ना, मिड टर्म की डेफिनेशन भी लिखी हुई है भाई। चलो मैं नया बना देता हूं, आई मेक अ न्यू वन है। देखिए मैंने कहा था मैप में मिड टर्म्स का पता होना चाहिए और एरियाज का पता होना चाहिए, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें।
अगर वो पता है तो बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पीछे सीखा है, ठीक है। चार आपके पास, देखिए ये पहले ये वाला था ना, ये वाला 4 ग्रुप थे, तो एक बिट चेंज करने से क्वांटिटी डबल हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अ सिंगल बिट चेंज द मिन टर्म क्वांटिटी डबल्स, राइट। तो ये एक स्क्वायर था ना आपका, अब ये दूसरा स्क्वायर बन गया। चलो ये मैं इधर डबल लाइन लगा देता हूँ, फिर ज्यादा समझ आएगा। अब ये देखें वही चीज डबल होगी, ठीक है। और नेबर अब कौन कौन से होंगे, ये दरमियान वाला इसका नेबर होगा। ये अगर मैं सेंटर से फोल्ड करूं तो अब ये वाला और ये वाला ये नेबर हैं आपस में, ये नेबर हैं, ठीक है। ये चारों को भी मैं कंबाइन कर सकता हूं। ये वाला इसका नेबर है, ये इसका नेबर है, ठीक है जी। जी ग्रे कोड में ये देखें ना, ग्रे कोड में लिखें ये 1 0 और 0 0 क्या है, 1 बिट चेंज। तो कॉर्नर इज ऑल्सो एडजस्ट। ये भी आप एग्जाम्पल्स काफी सारे करेंगे, ठीक है। अच्छा ये मैंने खराब कर दिया यार, चलो इसको मिटा देते हैं यहां से। मेरे पास व्हाइट कलर है, रबर नहीं था तो मैंने ये नई टेक्निक ली है कि वो चलो ये जरा है नहीं, अच्छा चलो नए बना लेते, ठीक है। अच्छा अब मिन टर्म लोकेशन बताएं जी मुझे। अच्छा M0 किधर है, M1, ये M2 इधर आ गया, ऐसे जाए ना 0 1 2 3, ठीक है। तो आपको याद भी रहेगा 1 2 जंप एंड देन कम बैक। 4 किधर आएगा जी, नीचे, ठीक है। 5 इधर आएगा, 6 इधर आएगा और M7 इधर आएगा। ये देख लें, डेफिनेशन आपके सामने है एंड यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस। अच्छा चलो इसको, अब x इधर था, y इधर था, z इधर था, तो ये दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा x का एरिया इधर, इफ यू लुक हियर द मिन टर्म्स, x का एरिया कौन सा बनता है जी, ये x है। अब x 4 मिन टर्म्स में 1 है, ठीक है। ये जो पूरी रो है ये x की है और ऊपर वाली 4 जो है वो x प्राइम की है, ठीक है। नाउ वी हैव डिफाइंड अ न्यू एरिया which is x, which is now 4 mid terms where x is 1 and the upper this row where x is x prime है यहाँ पे। अच्छा y कहाँ है, looking at the variables here, last two columns, so y इधर आ जाता है। ये y 4 खाने y के और ये 4 खाने y प्राइम के, ठीक है जी। और z बीच वाले तो इधर नीचे बना देते हैं जी। नहीं अलग वेरिएबल के अलग एरियाज है, आप देख सकते हैं कौन से एरिया। ये जो कॉलम है इसमें जी प्राइम है, जी प्राइम हर वेरिएबल के हिसाब से देखें तो बिकम्स इजी, ठीक है जी। व्हाट द आइडिया, यू नो द मिन टर्म लोकेशंस, यू नो द एरियाज, जॉब इज डन। बाकी तो मैपिंग है, सारी मैपिंग है या उससे ग्रुप से वापस एक्सप्रेशन लिखना है। चलें आगे, ये देखें मिन टर्म्स लोकेशन हो गई, एरियाज डिफाइन हो गए, ये एरियाज डिफाइन हो गए, ठीक है। एवरीबडी एग्रीज ऑन दिस। अच्छा ये बुक में वो कह रहा है कि गलत दिया हुआ है, ये करेक्शन भी कर लें आप, ठीक है। अच्छा मैपिंग फंक्शंस टू 3 वेरिएबल मैप, अब मैप करना है आपने। अच्छा ये मुझे बताएं, जो एक स्क्वायर होगा उसमें अगर मैं उसको कंबाइन करूंगा तो मेरे पास जो टर्म आए, जो एक्सप्रेशन आएगी उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, एक स्क्वायर को कंबाइन करूं कितने डिफरेंस होंगे, एक स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 1 स्क्वायर। यार मैं आई एम सेइंग कि ये मेरे पास 8 स्क्वायर थे ना, 8 स्क्वायर थे। अगर मैं एक इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ 1 था सिंपल, तो इसको मैं अगर कंबाइन करूं तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे,
तीनों, क्योंकि वी नो द मिड टर्म एंड द 3 वेरिएबल मैप, मिड टर्म में तीनों वेरिएबल होने चाहिए. 1 स्क्वायर विल गिव यू 3 वेरिएबल्स, राइट. अगर मैं 2 को कंबाइन करता हूँ, एक खत्म हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स रह जाएंगे. अगर मैं 4 को कंबाइन करता हूँ तो 1 रह जाएगा. अगर मैं सारों को कंबाइन करता हूँ 8 को, फिर 1 हो जाएगा. ठीक है. तो ये बेसिकली बता रहा है 1 in a cell indicates that the midterm is a part of the function. हाँ, वो बता रहे हैं कि जहाँ 1 है तो बेसिकली फंक्शन वहाँ 1 है, यानी midterm के हिसाब से बता रहे हैं. ठीक है. 2 adjacent square represent 2 literals. ठीक है. और 4 1 literal, और सारे 8 जो है 1. तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होता रहेगा. जैसे 4 वेरिएबल में जाएंगे तो 1 स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 वेरिएबल्स. अगर 4 को 2 को कंबाइन करेंगे उसमें तो 3 को करेगा. तो ये असूल आपने याद रखना. दिस कंसीडरिंग द बेसिक डेफिनेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स. चलें, अभी प्रैक्टिस कराते हैं. ये फंक्शन आ गया. ये अगर इसको कंबाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस हल्की सी कर लें, 1-2 मिनट कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए. अदरवाइज तो एग्जाम में हेल्प भी नहीं होगी. ये मिड टर्म्स लोकेशन ये मैप कर लिया. कैन यू मेक द ग्रुप्स? बनाए. कौन से ग्रुप बनते हैं? ये 2 ग्रुप्स बन गए. यही बने ना. इनकी एक्सप्रेशन बताएं आप. अब मैंने कहा था तीनों वेरिएबल्स को लेके चलना है. पहले x में देखें, y में देखें, फिर z में देखें. 3 हो गए अब. ठीक है. लेट्स मार्क द एरिया टू सिंप्लीफाई द थिंग. लेट्स मार्क द एरिया. ये मेरा किसका एरिया था जी? x. और y का एरिया ये था, और z का एरिया दरमियान वाला था. अच्छा, ये ऊपर वाले ब्लॉक को देखते हैं पहले. ये मेरा जो है किस ब्लॉक में है? x के हवाले से पहले देखें. x प्राइम में है, x प्राइम दोनों में नहीं है. इसका मतलब एक x का वेरिएबल होगा, और वो क्या होगा? x प्राइम. ठीक है. तो x प्राइम लिख दिया मैंने. y के हवाले से इसको देखें कहाँ है? y प्राइम में. और z के हवाले से कहाँ है? दोनों में. z प्राइम. देखिए ना, z और z प्राइम दोनों में. तो z नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, नीचे वाला ग्रुप किसमें है? x के हवाले से देखें. x में है, y के हवाले से है, और z के हवाले से नहीं. z प्राइम है तो z वॉन्ट. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया. कुछ भी नहीं करना. आपने ग्रुप्स बनाने हैं 2 के 4 के, और सिंपली एक्सप्रेशन लिखना. ठीक है. ये हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम. बट मतलब कॉन्सेप्ट इज यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट. ठीक है. एडजस्टेंट की हमने बात की है कि ये देखें, ये कर सकते हैं. ये बस लास्ट एग्जांपल. ये ग्रुपिंग पहले करें. 3 ग्रुप्स बताएं जी कौन कौन से. अच्छा, पहले यहां से शुरू हो जाए. ये किसका नेबर है? ये मैं नीचे वाले के साथ भी कंबाइन कर सकता हूँ, इसके साथ भी कर सकता हूँ. जी नहीं, दोनों नहीं. मैंने एक चूज करना है और जो मेरे एडवांटेज में होगा. और मैंने कोशिश करनी है कि बड़ा से बड़ा ग्रुप बने. तो देखिए, ये इसका नेबर है कि नहीं? और ये इसका भी नेबर है, और ये इसका नेबर है, और ये इसका नेबर है. तो 4 का एक ही ग्रुप हुआ था. जी 4 का हमने कहा बड़े से बड़ा बनाए ग्रुप ताकि. और वो नेबर है. मैंने कहा था कॉर्नर अगर फोल्ड करें सेंटर से एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो वो नेबर है. ठीक है. तो एक ग्रुप का हक ये बन गया दिस वन. ठीक है, 4 का. और ये बच गया बेचारा, ये इसको इसके साथ बना. तो एक्सप्रेशन बताएंगे मुझे. एरियाज मैं लिख देता हूं आपके लिए. x y z. अच्छा, ये जो कॉर्नर है 4, ये क्या होगा? x के हवाले से पहले देखें इसको. x के हवाले से x प्राइम दोनों में. y के हवाले से देखें, y और y प्राइम दोनों में. z के हवाले से देखें, z प्राइम में. तो एक ही वेरिएबल आएगा. ठीक है. 4 का एक वेरिएबल बनेगा. ये देखिए, x के हवाले से देखिए कहाँ आ रहा है? x और x प्राइम दोनों में आ रहे हैं.
तो x वोंट बी देयर। y के हिसाब से देखें, ये y यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो ये दोनों में आ रहा है ना, y में भी आ रहा है और y प्राइम में भी आ रहा है। y इज ऑल्सो लिमिनेटेड। z के वाले से देखें, ये z प्राइम में सिर्फ आ रहा है, तो z प्राइम। अच्छा, ये छोटा ग्रुप ऊपर x के वाले से x प्राइम में है, एक ही है, और y के वाले से y प्राइम में है, और z के वाले से दोनों में है, z वोंट बी देयर। सॉरी x प्राइम z प्राइम, ठीक है जी। So that's the concept. If you've done this concept, you have no problem up to 5 variables or 6 variables even. कि हमने 6 वेरिएबल तक किया जब हमने पढ़ा था, कि आपको आसानी होगी और 5 वेरिएबल तक आए। ठीक है, चलें। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। फिनिश द क्लास।